Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I will describe you lymphoid organs. This is all about matter of class 12, chapter 8, human health and diseases. And I am going to talk about the lymphoid organ with respect of immune system. Actually, overall immune system is a collection of different parts of our body. It includes the immune system of our body includes the specialized immune cells, the antibody, and the third one is lymphoid organ. Actually, immune cell means the B cell and T cells are the basic key immune cell in our body. The B cells or B lymphocytes and T cells or T lymphocytes are formed and get mature to those part of our body are known as lymphoid organ, because both are lymphocytes जहां बनते हैं उसको lymphoid organ कहते हैं. सिंपली भाई ऐसा सेल्स के नाम देखो, lymphocytes, T lymphocytes और B lymphocytes. सो lymphocytes जहां भी बनेंगे सिंपली क्या हो जाएगा, lymphoid organ होगा. कीप इन माइंड, यहां पे ये जानना है इम्यून सेल, एंटीबॉडी, lymphoid organ, ये तीनों मिलके हमारे बॉडी का क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं. इम्यून सिस्टम आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट पार्टिसिपेट इन इम्यूनिटी. Immune system are different part of our body that participate and cooperate with the immunity. So immune system not means a single things. You have learned the immune cell, that is the B cell and T cell, the B lymphocytes and T lymphocytes. The two types of immune cell in our body, B lymphocytes and T lymphocytes. The antibody are key features of our body of acquired immunity that fight against pathogenic components like viruses and different kinds of toxins produced by pathogens like bacteria. But they do not directly produce or gain through the food. They actually secreted by the B cells. So existence of antibody is never possible until the B cells are not formed. All about the B lymphocytes, T lymphocytes and antibody is over, but you don't know about the source of them. You don't have any idea how do B lymphocytes and T lymphocytes exist in our body, and that is actually the lymphoid organ. Lymphoid organs are those parts and organs of our body that produces the lymphocyte cells, either produce or mature. On this basis, the lymphoid organs may be primary and secondary. First of all, you need to write the definition of lymphoid organs. The specialized organs in our body where immune cells in bracket the B or T lymphocytes bracket closed either get mature or produce. First of all, you need to write either get produce or mature. Then the specialized cells or organs is known as lymphocyte cells or lymphoid organs. So how to write the definition of lymphoid organs? The specialized organs of our body in which the lymphocytes get produced and mature, that is known as lymphoid organs. So lymphoid organs are basically two types. Lymphoid organs are basically two types. The primary lymphoid organs, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs. Primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs are two different kinds of organs in our body. Now back to check what is primary lymphoid organs. Suppose that this is the primary lymphoid organs and this is the secondary lymphoid. इतना तो क्लियर है कि वहां पे या तो lymphocytes बनता है या फिर वहां पे मैच्योर, लिसन, या फिर वो एंटीजन सेंसिटिव. तो पहले ये जानते हैं कि प्राइमरी lymphoid organ बेसिकली क्या होता है. प्राइमरी lymphocytes, प्राइमरी lymphoid organs होते हैं, वहां पे lymphocytes प्रोड्यूस होते हैं और मैच्योर भी होते हैं. लिसन, not only
not only here in the primary lymphoid organs, the lymphocytes get produced, it also get matured. So lymphocytes, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, lymphocytes get produced and mature. कौन कौन से लिम्फोसाइट है? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। देखो होता क्या एक्चुअल में, एक कॉन्सेप्ट समझो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आपका स्कूल है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आपका वर्किंग प्लेस है। आप स्कूल में कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप कश्मीर में पढ़िए, कन्याकुमारी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि आप वहीं काम करेंगे। आप यूपी में पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी कंप्लीट होती है यूपी में और वर्क करते हैं अमेरिका में। तो बस इतना जान लीजिए, ये लिम्फोइड ऑर्गन जो सेकेंडरी टाइप है, ये वर्किंग प्लेस होता है किसका? लिम्फोसाइट्स का। जैसे मान लो बी लिम्फोसाइट्स यहाँ बन गया, तो यहाँ पे मैच्योर हुआ और मैच्योर होने के बाद जो है काम वगैरह सीख लिया, तो ये फिर मूव करके कहाँ आता है? ये फिर यहाँ से मूव करते करते इसमें आकर के इस यहाँ पे स्टोर होता है और यहीं पे उसको साइट मिलता है डिजीज से फाइट करने के लिए। ये जगह बनाता है, जगह प्रोवाइड करता है। लिम्फोइड जो टिश्यूज है, लिम्फोइड सेल्स है, नॉट टिश्यू, जो लिम्फोइड सेल्स है, चाहे बी सेल्स है चाहे टी सेल्स, उनको जगह देता है कि तुम लड़ो, मैदान खाली करके उसको प्रोवाइड करता है, लड़ो। और ये फैक्ट्री है एक तरह का, ये लिम्फोसाइट्स बनाने की फैक्ट्री है। और प्राइमरी लिम्फोइड यहीं पे बनते हैं और सीखते भी, काम भी यही सीखते हैं, सीख करके तब वहां पे जाते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है लिम्फोसाइट गेट प्रोड्यूस हियर एंड आल्सो गेट मैच्योर। सेकेंड, lymphocytes become antigen sensitive. Lymphocytes become antigen sensitive here. लिम्फोसाइट्स यहाँ पे एंटीजन सेंसिटिव होते हैं। एंटीजन सेंसिटिव मीन्स क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स में जो कंपोनेंट्स है, चाहे बी लिम्फोसाइट्स हो चाहे टी लिम्फोसाइट्स हो, वो सीखते हैं कि किसके अगेंस्ट लड़ना है और किसके साथ रहना है। ठीक है, दैट इज नोन एज एंटीजन सेंसिटिव। मीन्स द सेंसिटिविटी अगेंस्ट द एंटीजेंस इज रिक्वायर्ड बिकॉज दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। If they cannot recognize whatever the difference between our cells and antigen, that is pathogens, they cannot actually able to form the antibody. So as you all know, the B lymphocytes form antibody and B lymphocytes do not know and do not learn properly whatever the features of my cells and my protein and the proteins of antigen, that is proteins of pathogens. That's why there is need to बिकम एंटीजन सेंसिटिव। यहाँ पे एंटीजन सेंसिटिव का होना बहुत जरूरी है, किसका? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का। अगर वो एंटीजन सेंसिटिव नहीं होते हैं तो सीख नहीं पाएंगे कौन एंटीजन है और कौन हमारे बॉडी का अपना प्रोटीन है। ठीक है, एंटीजन सेंसिटिव कहाँ होते हैं? एग्जाम में पूछता है एंटीजन सेंसिटिव, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके प्राइमरी लिम्फोसाइट्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई साल से पूछता रहा, लिख लीजिए कॉपी पे। बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो का मेन काम क्या है? बोन मैरो का मेन काम है बी सेल्स और टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और थाइमस जो है वो टी सेल से एसोसिएटेड टर्म है। टी सेल में टी जो वर्ड है वो थाइमस है, तो टी सेल जो है टी लिम्फोसाइट्स वो थाइमस से प्रोड्यूस होता है। मेजॉरिटी ऑफ बॉडी थाइमस से टी सेल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बोन मैरो से भी टी सेल प्रोड्यूस होता है। तो टी सेल बोन मैरो और थाइमस दोनों से प्रोड्यूस होता है, जबकि बी सेल सिर्फ बोन मैरो से। ये पहले बताया जा चुका है पहले के कॉन्सेप्ट में। आई होप आपका कॉन्सेप्ट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे आते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आपको जानना है यहाँ पे क्या होता है? इट स्टोर द लिम्फोसाइट सेल, इट स्टोर the lymphocyte, it store the lymphocyte cell, lymphocyte cells। जब lymphocytes लगा दिया तो सेल्स लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, यानी कि जो बी सेल्स और टी सेल्स यहाँ पे सीख के पैदा होके वहां पे गए, उनको जगह देता रहो यहीं पे, और यहीं से तुमको मैं वार एरिया में भेजूंगा। दूसरा काम क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर एंटीजन
इंटरेक्शन, एंटीजन इंटरेक्शन, ये जगह देता है, इसको जगह देता है, ये जगह देता है जो बी सेल्स और टी सेल्स यहां से मूव करके वहां जाते हैं। ठीक है, तो ये दो काम करता है, स्टोर भी करता है और प्रोवाइड भी करता है जगह, ताकि वो फाइट कर सके। तो ये तो कुछ की फीचर्स होते हैं जिसको आपको जानना है, समझना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जांपल में आप लिख लीजिए कॉपी में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेनिज्म, स्प्लीन, स्प्लीन लीवर के जस्ट पीछे एक लोब्ड स्ट्रक्चर है, लीवर जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज स्प्लीन। एंड पियर्स पैच ऑफ इंटेस्टाइन, पियर्स पैच ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में एक स्पेशल तरह का ऑर्गन है छोटा छोटा जिसको कहते हैं पियर्स पैच ऑफ इंटेस्टाइन। मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा यूनिटरी इंटेस्टाइन ही है, पियर्स पैच ऑफ इंटेस्टाइन उनमें से एक। ठीक है, इसके अलावा टॉन्सिल, टॉन्सिल, टॉन्सिल भी एक तरह का क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इनके अलावा कुछ स्पेशल लिम्फेटिक टिश्यूज भी हमारे बॉडी में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका डिस्कशन हम इसी वीडियो लेक्चर के लास्ट तक कर देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बोन मैरो और थाइमस के बारे में क्लियर कर दे कॉन्सेप्ट। बोन मैरो, bone marrow, listen, bone marrow are located inside the bone, so as according to terms, located inside bone that produce B cell and T cell. T cell, listen carefully, not only produce, it also provide the maturation environment for the maturation. That's why the B cells become antigen sensitive. So these are the special bone marrow. That is, bone marrow is very important. Not only the bone marrow form the B cells and T cells, bone marrow also able to form the RBC, WBC and platelets. The red bone marrow form RBC, white bone marrow form WBC and megakaryocytes form platelets. तो ये ड्यूअल रोल है इसका बॉडी में. Also form RBC, WBC, प्लेटलेट्स. इसको आप जानते होंगे बहुत ज्यादा इस डिटेल में, बोन मैरो बारे में लीजिए. सेकेंड, thymus secrete very special types of hormones that is known as thymosin, and that also secretes the special types of cells known as T cells. T cells are helping T cells or helper T cells that help to B cells in order to produce the antibody. Thymus in newborn baby are bigger than the adult one. As the baby become mature, as the baby grow, then the total size of thymus get reduced. It is lobed structure at the thoracic region. हार्ट के जस्ट सेंटर में, हार्ट के बीच में एकदम होता है, मतलब ऐसा नहीं घुसा होता है, उसके आसपास एकदम सेंटर में होता है. ठीक है, और ये थोरैकिक रीजन का पार्ट है. अर्लियर बिगर इन साइज, लेटर गेट रिड्यूस्ड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी लिम्फोसाइट्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के फीचर्स. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इसके कुल की फीचर्स नोट कर लीजिए कॉपी में यहाँ पे. And B cells, B lymphocytes, T lymphocytes. The lymphocyte cells store, point 1. Lymphocyte cells become immune, that is show immune response over here. कहाँ पे immune response show करते हैं? Secondary lymphocytes. ठीक है,
एंड थर्ड लिख लीजिए, इट प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन विथ एंटीजन टू द बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट मींस टू द लिम्फोसाइट सेल्स। ये तीन बातें लिख लीजिए। एग्जांपल आपके क्या कहते हैं? पहला एग्जांपल था आपका स्प्लीन, इट आल्सो लोकेटेड एट द thoracic region means at the chest area just near to liver. The liver like structure are found, that is known as spleen. It is also lobed structure and it has two functions. First function, it store the lymphocyte cells. Phagocytes of WBC, RBC. WBC. It store the lymphocytes, phagocytes. Also trap the blood-borne pathogen. It also trap the blood-borne pathogen. It means first role of spleen is to provide the immunity. ये दोनों सेंटेंस को आप देखेंगे, दोनों इम्यूनिटी के केस में चला जाएगा। लेकिन ये स्प्लीन को आपको पता है, स्प्लीन्स आर द ग्रेव यार्ड ऑफ बॉडी। स्प्लीन बॉडी के क्या है? ग्रेव यार्ड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्प्लीन जो ग्रेव यार्ड है वहां पे आरबीसी आता है और डेड जो आरबीसी रहता है वो ट्रैप होता है, ठीक है, और वहीं आकर के वो उसका डिग्रेडेशन शुरू होता है। दैट इज इट एक्ट एज ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी। आरबीसी का क्या है? ये ग्रेवयार्ड वेयर द आरबीसी गेट डिग्रेडेड। Listen carefully. It also filter the dead RBC from blood because the total RBC age is 120 years. Now back to the lymph nodes, Pierce patch of intestine. इसको इरेज करते फिर Pierce patch of intestine और lymph nodes आपको समझा देंगे। Pierce patch of intestine. Pierce patch of intestine, tonsil, lymph node, ये दोनों आपको सिलेबस में नहीं, बस नेमिंग थोड़ा टर्म। पियर्स पैच ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे ऐसे पैच हैं। पैच मीन्स होते हैं जो स्पेशल जो है उस पे धब्बे टाइप के होते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंटेस्टाइन को कट करने पे ऐसे छोटे छोटे पैच मिलते हैं। तो उस पैच की खास बात होती है कि वहां पे लिम्फोसाइट सेल्स स्टोर रहता है और जरूरत पड़ने पे फाइट करता है। टॉन्सिल्स आप थोड़ा सा कभी कभी देखते हो कि टॉन्सिल्स बढ़ जाता है, बोलने में दिक्कत आती है, वो वहां पे पैथोजन सेंसिटिव एरिया है और वहां पे पैथोजन्स के एंटीजन्स के साथ इंटरेक्शन में वहां स्वेलिंग आ जाती है, तो वो रिस्पॉन्स है, जनरल होता रहता है, ठीक है। टॉन्सिल्स आर लोकेटेड इन द माउथ बकल कैविटी। लिम्फ नोड्स आपके सिलेबस में है, इसको जानना है। लिम्फ नोड्स 50% ऑफ टोटल इम्यूनिटी, टोटल लिम्फो रिक्वायर्ड ऑर्गन्स और लिम्फोसाइट्स आर एक्चुअली कम्स फ्रॉम द lymph nodes. It is the part of lymphatic system. इसके बारे में लिख दीजिए, that is store the lymphocyte cells. Special cells that is stored in the lymph is lymphocyte cells, B lymphocytes and T lymphocytes, lymphocyte cells. इसके बाद जो बच जा रहा है वो स्पेशल टिश्यूज है। स्पेशल टिश्यूज वो स्पेशल हेडिंग में डालेंगे, स्पेशलाइज्ड lymphatic टिश्यूज। बॉडी में स्पेशलाइज्ड लिम्फैटिक टिश्यूज है। स्पेशल टिश्यूज हैं जो लिम्फैटिक सिस्टम में हमारे बॉडी के जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो लिम्फोसाइट सेल्स को स्टोर करते हैं और सीक्रेट करते रहते हैं। हालांकि वो एसोसिएटेड पार्ट है, बॉडी के दूसरे किसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पार्टिसिपेट में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे MALT, म्यूकोसा associated
एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू। बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपको पता होगा, शुरुआत में बताया था वो बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड तुम्हारा ये जो सेलुलर बैरियर था, फिजिकल बैरियर में, फिजिकल बैरियर नॉट सेलुलर में, सेलुलर मेथड्स सेलुलर बैरियर्स में बताया गया था, फिजिकल बैरियर में बताया गया था कि बाहर स्किन होता है और अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर होता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ये एसोसिएट रहते हैं। कौन एसोसिएट रहता है, ये लिम्फोइड टिश्यूज, और वहां पे क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं लिम्फोसाइट सेल्स का, स्पेशल कंडीशन में। इसके अलावा गाल्ट की बात करूं तो GALT इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। ये हमारे गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, हमारा स्टमक है, वहां पे जो कुछ स्पेशल टिश्यूज है जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के थ्रू, लिम्फोसाइट को स्टोर करके बॉडी को प्रोवाइड करके, बॉडी को लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करके ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एसोसिएटेड पार्ट है, नाम देखो एसोसिएटेड, मतलब ये हमारे बॉडी में स्पेशल कोई इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है, दूसरे किसी सिस्टम के साथ इम्यून सिस्टम एसोसिएटेड, इस वजह से इसका नाम पड़ गया है एसोसिएटेड टिश्यूज। तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज और गैस्ट्रिक एसोसिएटेड, पूरा लिख दिया, गैस्ट्रिक लिखा हुआ है, एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लाइव क्लास में इस वीडियो लेक्चर की एनालिसिस आप कर दीजिएगा, नहीं तो फिर डाउट रहेगा आपको। थैंक यू।